वेलकम स्टूडेंट्स एंड केयरिंग पेरेंट्स। जब बात कॉलेज एडमिशन्स की होती है, करियर की होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का। और इस डिसीजन को इजीली लेने के लिए हम आपके बिहाफ पे 6 क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो हम कॉलेजेस से पूछेंगे डायरेक्टली। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले उस कॉलेज से या रिलेटेड सोर्स से पता जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉलेज है और कोर्स है जिससे लेके आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे एक्सपर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं या अपने उस कॉलेज और कोर्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। सो चलिए सही सवाल पूछते हैं कॉलेजेस से। सो टुडे वी हैव Mr. Suchetan, who takes care of admission department there in Shri Sukmani SSIM College. He is here to guide you or give you the insight which will be very helpful to you in deciding whether you should go ahead with the PGDM course of this college SSIM. So let's begin. Welcome Suchetan ji to Boost My Talent. Thank you very much. Thank you very much. So Suchetan ji, just give me a brief about yourself. Thank you, Sandeshji. Thank you very much for this opportunity. And before I talk about myself, I should be talking first of all about Shri Sukmani also. तो quickly अब आपको बता देता हूँ। 2009 में established institution है, 15 साल के लगभग हो चुके हैं, 9th बैच है एंड श्री सुकमनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, 1972 में established है एंड एट द सेम टाइम आपका 55 plus courses हैं, 13 institution है and at the same time 30,000 plus alumni है. Talking about myself, I have been into talent sourcing from last 15 years and started this company called Job Bank Global also. And we collaborated with Sri Sukmani Institute of Management to start our PGDM. In fact, take the PGDM legacy of Sri Sukmani Institute of Management further to a level wherein we can give a real, practical exposure to the candidates. So that's a very small introduction about me and the institute. Very nice, Suchetan ji. So when we talk about the talent source part here, so how Job Bank Global is associated with SSIM here? Sandesh ji, actually, Sri Sukmani Institute of Management has already been doing very good, but they were wanting to, include something which has got some sort of practical aspect to the PGDM, which make PGDM different from MBA also. So we came into picture at that point of time. As I've told you earlier also that Job Bank Global has been working into this specific industry from last 3 years. We are a typical placement company. We support, institution for their campus placements. So we came into picture here at Sri Supani Institute of Management. We tied up with them. We bought a lot of corporate people and transformed the course structure entirely and made sure that we are going to be giving maximum practical exposure to the candidates. And we are supporting Sri Supani Institute of Management in terms of their admission. First of all, when you are talking about the entrance exams, or probably we call it ACE, which is admission and career evaluation test. So we support them for this specific activity. Then how we can contribute in terms of their academics, we are supporting them in terms of their academics as well. उसके सिवा हम उनके प्लेसमेंट्स में तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट एक्सपोजर आल्सो वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट देम. सो हम इन सभी एक्टिविटीज में उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सपोर्ट कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट SSIM PGDM, that this is going to be India's first PGDM program which is being backed by a talent sourcing company like Job Bank Global. So great to hear that. Plus hopefully students के लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा. Plus one thing to ask, how many courses are currently running in SSIM? Sandeshji, we only have one program, which is our flagship program, which is Postgraduate Diploma in Management, approved by AICTE Government of India. That's the only program that we are running as of now. So our prime focus is to, generate people for corporate. As I've told you from last 1.5 decades, I have been into this specific industry. I've been working with a lot of people. Just to give an insight that I have done consulting for fresh talent hiring for more than 50 companies in corporate when I'm talking about. So my prime focus is to offer them best of the available talent in India. That is our prime focus. That is why we only have got one PGTM program. That's it. Nothing else.
ओके, सो इट्स लाइक कि एक ही कोर्स पे फोकस है मल्टीपल कोर्सेज की जगह, जी तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। तो मैं क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करता हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सो व्हाट आर द की एक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स एसएसआईएम कॉलेज हैज रिसीव्ड? okay. So, Sandesh ji, actually, most of the accreditations when I'm talking about here in India uh, today are more focused upon teaching part, and we are more focusing on the skilling part actually. So we have made sure that we are getting the mandatory accreditations as for an autonomous institution like ours. It is mandatory to have AICT approval. So we are approved by AICT, Government of India, and at the same time, you see there are very few organization today which has got some honesty and which has got some sort of credentials. So we have recently been ranked by, I would say, by Times of India. So Times of India has recently conducted Times B School Survey 2025. So if in this we have all over India, we have been considered as we've got 72nd rank. In Delhi, we have got 10th rank. Fortunately, as I have told you that we are our forte is campus placements and corporate exposure. So in terms of placements, we have been ranked 10th in India and 4th in North India. So this has been some of our credentials and the rankings and the accreditations and approval that we have got as of now. Thank you so much for being so honest. So currently going as in 2025. So these are the current credentials, accreditations SSIM have. Exactly. So the second question here is, what are the scholarships or the financial aid options available for the students here? Sadesh Sri Sukmani group happened to be a very big group. So a big group. They have got close to. They have got exactly 13 institution. They are about to come up with their own university as well as a medical college as well. So they have recently made a trust also, couple of years back, and they have a specific close to 10 cr of scholarship opportunities that they have already kept aside for meritorious students. We have various parameters onto which we decide that how much scholarship has to be given, and these parameters has already been mentioned onto our admission brochures as well. Like for example, if somebody is a single child or coming from a background wherein their parents are into defense, or probably they have given wonderful in terms of their interview. We have our own interview policy. So if they have performed well in terms of their interview, so on various parameters, these are some of the parameters that I'm mentioning over here as if now. इसके सिवा और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम स्कॉलरशिप देते हैं। 10 करोड़ के आसपास की हमारी श्री सुखमनी ट्रस्ट की एक स्कॉलरशिप है जिसके अंदर से हम ये सारी स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों को। बच्चे मेरिटोरियस होने चाहिए, बच्चे परफॉर्मिंग, if they are a good performer, we are open to offer them opportunity in terms of scholarship. ग्रेट। और जो ये स्कॉलरशिप्स होंगी, इनके इनके बेसिस तो आपने बताया है कि मेरिट बेस्ड पे होगा। सो व्हाट व्हाट टिपिकल परसेंटेज ऑफ अ फीस और समथिंग इन अ फिगर, एक एक थोड़ा सा कुछ एक अमाउंट या कुछ एक परसेंटेज वाइज कि जो स्टूडेंट को थोड़ा क्लैरिटी दे व्हाट बेस्ट दे कैन एक्सपेक्ट। Sir, we have a maximum cap of around 1 lakh. अगर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मर है और अच्छे से परफॉर्म करता है तो हम 1 लाख तक की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं कैंडिडेट को। ग्रेट, क्योंकि नंबर्स एक ऐसी चीज है जो थोड़ा क्वांटिफाई हो जाता है कि ओके, सो अगर मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं तो आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। एब्सोल्युटली। ग्रेट टू हियर दैट। एंड व्हाट अबाउट द लोन अवेलेबिलिटी, कि किस तरीके का लोन का प्रोसेस रहेगा और इज इट इजी टू गेट इट? डू यू हैव सम लोन पार्टनर्स? राइट। संदेश जी, वी हैव टाइड अप विद 8 different banks, जिसमें से कुछ सरकारी बैंक भी हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं, कुछ एनबीएफसीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, we have tied up with Indian Overseas Bank, Punjab National Bank. We have tied up with HDFC Bank, ICICI Bank. In terms of NBFCs, we have got Avanze, we have got HDFC Credila. So we have tied up with 8 different banks. So लोन का कोई चैलेंज नहीं आता है। इफ अगर किसी को सरकारी बैंक से लोन लेना है तो हम उसमें भी उसका सपोर्ट करते हैं। अगर किसी को आई मीन परसेंटेज में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टाई अप विद कैनरा बैंक आल्सो। तो वो जो फीमेल्स के लिए थोड़ा एक स्पेसिफिक परसेंटेज देती हैं कि भाई वो फीमेल्स के लिए कम परसेंटेज पे लोन करते हैं।
एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ लोन, तो 70% से लेकर के आपका 100% तक के लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी को अगर लग रहा है कि वो अपनी फीस का 70% लोन करवाना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। अगर वो 100% लोन कराना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। अगर किसी को अपना हॉस्टल फैसिलिटी भी लोन करानी है तो उसमें उसमें अवेलेबिलिटी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लोन में इंटरेस्ट अपना नहीं देना चाहते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टाइड अप विद कंपनी कॉल्ड जोडो। सो नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है। अगर बच्चा केपेबल है देने में, तो वो अगले 24 मंथ्स में जब तक वो अपना पीजीडीएम कंप्लीट करेगा, उसको वो डिवाइड कर सकता है, अपनी फीस को डिवाइड कर सकता है फ्रॉम 24 मंथ्स, और उसको वो नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाएगी, जिसमें वो यूजुअली 2 लाख से ऊपर बचा सकता है जो इंटरेस्ट में उसका जाता है, अगर वो नॉर्मल लोन पे जाता तो। गुड टू हियर दैट कि लोन फैसिलिटीज भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। और इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि बैंक के पीछे जाना, फिर फॉलो अप करना, फिर वो लोग अपना कुछ कुछ प्रोसेस बताते हैं, सो इट इट कुड बी टाइम टेकिंग समवेयर। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज विद इन द कैंपस और ऑन अ फोन कॉल ये आप सॉल्व कराते हैं, तो दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट हियर विच आई कैन सी। इसके बाद मेरा जो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जिस तरीके की इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, मैं ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज की डेट में जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत रैपिड ग्रो कर रही है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। सो जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे वो ये है कि जो करिकुलम जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, सो वो किस तरीके से डिजाइंड है कि वो फ्यूचर रेडी करिकुलम बन सके। लाइक एआई आ रहा है, आज मैं एक कोर्स कर रहा हूँ और मैं 2 साल बाद उस कोर्स को बाहर करके निकला और मुझे पता लगा कि नाउ एआई और सम अदर टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली ओवरटेकन दैट जॉब पोजीशन जो मुझे मिलनी चाहिए थी ये कोर्स करने के बाद। So how is the curriculum designed? Is it future ready? So please tell me about that. संदेश जी, इसको मैं ना 3 पार्ट्स में आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये एक आपका जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी ही पूछ सकता है, क्योंकि आप इन एंड आउट जीते हैं एजुकेशन को, आप अपने प्रोफेशन को जीते हैं, इस वजह से आप सवाल पूछ सकते हैं, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि हम पिछले बहुत सालों से कॉर्पोरेट के साथ इन एंड आउट काम कर रहे हैं, 100% हमारा काम थ्रू आउट द ईयर कॉर्पोरेट नेटवर्किंग को डिवोटेड है। सो हमें वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने अपना पूरा पूरा करिकुलम डिजाइन किया है। हमने अपने करिकुलम को डिजाइन किया है 4 बेसिक पिलर्स पे। एक पहला तो मैनेजरियल स्किल्स, जो कि यूजुअली हम एक बहुत डिफरेंट तरीके से मैनेजरियल स्किल्स देने वाले हैं, बच्चों को दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने उसको टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज किया है। जैसे कि आपने बताया कि एआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और आने वाले 5 सालों में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है करियर में। AI is going to be complementing candidates a lot in terms of their career into upcoming 25-27 years। अगले जो 2 डेकेड्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही होने वाले हैं। सो हमें 2027 रेडी करिकुलम बनाना था। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव ट्राइड इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी इन 2 ways। पहला तो हमने कुछ ऐसे स्किल्स जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, वो 5 ऐसे स्किल्स, जैसे कि आप ले लीजिए बिजनेस एनालिटिक्स स्किल्स। इसके साथ साथ हमने इसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेशनल बिजनेस स्किल्स, एंड एट द सेम टाइम चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हो गया। तो ये सारे स्किल्स को ऐड करने के लिए हमने 8 डिफरेंट सर्टिफिकेशन ऐड करे, और इन 8 डिफरेंट सर्टिफिकेशन को इन स्किल के जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे EY, KPMG, ग्रांट थॉर्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, ग्रोथ स्कूल, इन सभी के साथ ऐड करा। तो एक ये तरीका था जिसमें हमने बच्चों को टेक इनेबल्ड करा। दूसरा, वी टाइड अप विद दिस कंपनी कॉल्ड ओपन लर्निंग लिमिटेड, और इन्हीं का एक अपना खुद का एक AI बेस्ड SaaS है, जिसके थ्रू इन्होंने यू नो इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड किया है, और कई सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज से लर्न किया है इनके जो SaaS ने। तो उसके थ्रू हमने अपना पूरा पूरा करिकुलम डिजाइन किया है। सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लेटेस्ट करिकुलम एवर, राइट। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था। प्लस हमने इसमें कुछ और टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया, जैसे एक स्मार्ट टेक होता है, विच इज स्किलिंग मैट्रिक्स एंड रियल टाइम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बच्चा अपने कोर्स के प्रोग्रेस को चेक कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम अपने खुद के प्रोग्रेस को चेक कर सकता है, दैट टू इन 2 dimension, स्किल्स एंड पेस एंड एफिशिएंसी, 2 चीजों के थ्रू।
इसी के साथ हमने एक timetable.org करके कंपनी है, स्टार्टअप है, उससे हमने टाई अप करके एक स्किल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसमें बच्चे अपने लेक्चर में वो कौन-कौन से स्किल्स को ट्रेन करने वाले हैं, अगर वो लेक्चर वो करते हैं, तो उस लेक्चर के पहले ही उनको वो बात पता चल जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लेक्चर कल सुबह करना है, तो आपको आज ये बात पता होगी या फिर 1 हफ्ते पहले आपको ये बात पता होगी कि अगर आप कल वो इकोनॉमिक्स का लेक्चर करने वाले हो, तो उसमें आप अपने कौन-कौन से स्किल ट्रेन करने वाले हो। सो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू प्लस हमारी कुछ ऐसी मास्टर क्लासेस और सिम्पोजियाज़ होने वाली हैं, प्लस इसमें कुछ ऐसे एमडी और सीएक्सओ मीटिंग्स होने वाले हैं, जिसके थ्रू हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन कर रहे हैं, जिससे बच्चा फ्यूचर रेडी हो सके। देखिए, आज के ज़माने में भी कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशनली ड्रिवन नहीं लिया जाता है। सारे के सारे डिसीजन ड्रिवन बाय नंबर्स होते हैं, डेटा क्रंचिंग के थ्रू होते हैं। सो वी आर इंश्योरिंग कि बच्चे प्रॉपरली डेटा क्रंचिंग कर सके, एआई, चैट जीपीटी, पावर बीआई, ऑरेंज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टैब्ल्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, पिवट टेबल, पाइथन, ये सारी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को वेल अवेयर होना हो सके, इसमें वेल इक्विप्ड हो सके, तभी आज के जमाने में बच्चा जो है एक हाई पेइंग जॉब कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम यू सी सर्वाइव कर सकता है। हाई पेइंग जॉब इज अगेन समथिंग विच इज अ सेकेंडरी थिंग। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सर्वाइव करना कॉर्पोरेट में आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा तभी कर सकता है जब बच्चे को ये सारी टेक्नोलॉजीज पता होंगी, और इन सारी टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट से वो अपने मैनेजरल डिसीजन मेकिंग करेगा। ये आपने काफी अच्छी चीजें बताई हैं यहाँ पे। रीजन बीइंग मैं भी डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं इसी फील्ड में हूँ, और हम एजुकेशन की फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। सो जितनी भी स्किल्स आपने बताई, ये दीज आर दी न्यू एंड ट्रेंडिंग स्किल्स। तो जिसको बोलेंगे कि यही मार्केट में इन है आज की डेट में। और यस, ये ट्रेंड भी कर रही हैं, और ये सम ऑफ द मस्ट नो स्किल्स हैं आज की डेट में जो आपको आनी ही आनी चाहिए। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा संदेश जी इसमें, क्योंकि आपके ऑडियंस बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही कुछ नया सुनने के लिए आपके पास आते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताना चाहता हूँ कि आज का जो पीजीडीएम या फिर आज का जो भी आप एमबीए करने वाले हैं, वो 2025 रेडी नहीं होना चाहिए, वो 2027 रेडी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 7 रेडी 2027 होना में चाहिए, जाएगा राइट। और 2027 के स्किल्स आज राइट। से भी ज्यादा अपडेटेड होने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल संदेश जी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो ब्लॉकचेन के राइट। लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज मीटिंग विद वन ऑफ द को फाउंडर्स और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ब्लॉकचेन जो है वो एक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी है विच इज गोइंग टू बी ट्रस्टलेस। अगर यहाँ पे ट्रस्टलेस बोला है उन्होंने, तो हम अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से समझे उसको, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बट अगर आप कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग से या फिर एक टेक्नोलॉजी एक साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग से अगर आप उसको समझेंगे, तो ब्लॉकचेन इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है कि आप उसको ट्रस्टलेस बोल सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आप आज स्किल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा आपको ये मुझे बताना चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है जो कि हर किसी बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि अगले 2027 तक ये स्किल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें ये सारी स्किल्स आज की डेट में जो पहले हुआ करती थी कि यू शुड नो सम ऑफ द बेसिक माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, यू नो, और काइंड ऑफ कि आपको बेसिक कोडिंग्स और कुछ आनी चाहिए। तो दीज आर द न्यू स्किल्स ऑफ इमर्जिंग इंडिया, और यू कैन से ग्लोबली दीज आर स्किल्स आर इमर्जिंग। तो गुड टू नो राइट। कि आप इन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं और उस पर फोकस करते हैं और उन चीजों को आप समझते हैं। और राइट। मैं जो करिकुलम ढूंढ रहा हूँ और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कि हम हमारे स्टूडेंट्स को वही कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे कि आप उनमें जाएं, वो कॉलेजेस ही ये होने वाले हैं जो 2027 लाइक 2028 इस तरीके के फ्यूचर रेडी करिकुलम्स को पढ़ा रहे हैं, वेरी नॉट दी कोर्सेज और करिकुलम विच इज करेंटली गोइंग ऑन, क्योंकि ये तो 2 साल बाद चेंज होना ही होना है। एग्जैक्टली। सो इसी के साथ सुचेतन दी, मेरा जो अगला क्वेश्चन है विच इज a bit related to this but still important part here, कि what are the qualifications and industry experience of your faculty, because वो भी यहाँ पे बहुत मैटर करेगा कि किस तरह के लीडर्स हैं जो उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली। संदेश जी, हमारी पीजीटीएम की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज हैं।
पहला तो हमारा 60% आउट ऑफ क्लास करिकुलम है. सो हमारा जो है 60% प्रैक्टिकल करिकुलम होने वाला है एंड 70% करिकुलम बीइंग टॉट बाय रियल टाइम प्रैक्टिशनर्स. सो सिंस वी आर जस्ट 10 minutes अवे फ्रॉम गुड़गांव, तो हमारे लिए जो है ये एक ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं. अगर हम बहुत दूर होते गुड़गांव से तो हमारे लिए मुश्किल होता. गुड़गांव चूंकि एक कॉर्पोरेट हब है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे लिए इजी है. 700 प्लस कॉर्पोरेट्स हैं वहां पे. तो हमारे लिए एक्सपर्ट्स जो है वो मेजरली वो लोग हैं जो रियल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, रियल टाइम वो काम कर रहे हैं. सो वो ही आपके यहाँ पढ़ाने आने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स का, केपीएमजी के साथ हमने टाइप किया हुआ है. तो जो केपीएमजी के रियल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बहुत ही सीनियर लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आके पढ़ाएंगे. अर्नस्ट एंड यंग के साथ हमारा टाइप है मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए, तो वहां के रियल टाइम प्रैक्टिशनर्स आगे पढ़ाने वाले हैं. इसके बाद हमारा ग्रैंड थॉर्टन के साथ जो टाइप है उसके रियल टाइम प्रैक्टिशनर्स आगे पढ़ाने वाले हैं. सो ये हमारे कुछ ऐसे बड़े प्रैक्टिशनर्स हैं. या फॉर दैट मैटर इवन पिच आर वे की बात कर लीजिए आप, या फॉर दैट मैटर आप ग्रोथ स्कूल की बात कर लीजिए. तो इन सभी के जो रियल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं वही आके पढ़ाने वाले हैं हमारे यहाँ पे. हम ज्यादा जो है टीचिंग पे नहीं स्किलिंग पे फोकस कर रहे हैं. तो दैट इज द रीजन वाई हमारे जो प्रैक्टिशनर्स, मतलब अभी जो हमारे ट्रेनर्स हैं या फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो रियल टाइम मतलब जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो पढ़ाने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ओपी खंडूजा हु हैपन टू बी एक्स पेप्सिको, एक्स डाबर, एक्स आपका डीएस ग्रुप, राइट. So he is presently with Jaipuria Group. He is the chief strategy officer over there. So he is going to be one of our mentors, one of our trainers जो कि हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे आकर के. Mr. S.Y. Siddiqui, who is chief mentor to Maruti Suzuki India Limited. And Mr. Amit Pandey, who happened to be chief operating officer to PinCap. So these sort of, people who are best into their industry. So these sort of people are going to be teaching. Plus, when I'm talking about our faculty, we are very much choosy about them. आई मीन आई डू नॉट वांट जो कि 20 साल पहले जिसने पढ़ाई करी है, वो जो पिछले 20 सालों से वही कंटेंट पढ़ा रहा है, ऐसा कोई इंसान आके पढ़ाए. अदरवाइज फिर एमबीए में और पीजीडीएम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता. सो प्रोफेसर सुजलाना हु हैपन टू बी वन ऑफ आवर डीन्स, she is basically she is one of the she's one of ex Simbi, and at the same time she comes from a defense background. So she's very much specific about her curriculum, at the same time her academics. इनफैक्ट जो उन्होंने अपना पूरा पूरा करिकुलम डिजाइन किया है, शी हैज मेड श्योर कि उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं रखा है जो कि आगे चल के फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल whenever we are talking about our curriculum, we are ensuring कि हम आपको ये भी बताएंगे अपने करिकुलम में जब हम जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ कि उसका आपका करियर रेलेवेंस क्या है. अगर उसका करियर रेलेवेंस नहीं है, यानी कि वो अगर आपके कॉर्पोरेट में यूज नहीं होने वाला, तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे. तो वी हैव गॉट वन ऑफ सम ऑफ द वेरी गुड फैकल्टीज. आई मीन we've got Mr. Saurabh Gaba, who happened to be one of the best faculties into marketing, and at the same time, we've got Professor Nisha also. So she again is someone who happened to be one of the very good faculties in terms of in terms of finance. ये सभी के सभी PhDs हैं, and at the same time, they are having good number of experience also. And at the same time, ये practically भी अपने आप को बहुत ज्यादा exposed रखते हैं. ये बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली चीजों पे जाते रहते हैं. तो हमारी जो एक लिमिटेड फैकल्टी लिस्ट है, वी आर इंश्योरिंग कि हमारा लिमिटेड फैकल्टी इंटरेक्शन भी बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स. मेरा भी यही मानना है. आपने जो फैकल्टी की लिस्ट बताई, इट्स अ ग्रेट फैकल्टी टू हैव ऑन बोर्ड, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए आ रहे हैं. बिकॉज जो लेटेस्ट करिकुलम जैसे आपने बताया उनको फॉलो कर रहे हैं, और जो मार्केट में इन हैं, who are working with corporates, who have international exposures, who are PhDs, और जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि व्हाट आर द रियल चैलेंजेस देयर एंड व्हाट आर द स्किल्स विच आर कमिंग, जिसके लिए हमें आज तैयारी करनी है, राइट. तो ये एक फ्यूचर रेडी करिकुलम और एक सुपर स्ट्रॉन्ग मेंटर, आई थिंक ये हैंड इन हैंड चलने वाली चीज है. और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था जो आपने मुझे बताया कि इफ यू हैव सच अ गुड करिकुलम, देन उसको पूरा डिलीवर करने के लिए जो मेंटर चाहिए, जो टीचर्स चाहिए, वो अगर आपके पास उतने ही सॉलिड है, सो इट्स अ कॉम्बो टू हैव. एग्जैक्टली. So nice to hear this thing as well. इसी में मेरा फिफ्थ क्वेश्चन जो आएगा वो
भी इंडस्ट्री एक्सपोजर से रिलेटेड जाएगा यहाँ पे, बिकॉज आपके जो मेंटर्स हैं वो भी इंडस्ट्री से काफी रिलेटेड है और वहीं से आते हैं. सो हाउ डज योर इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट नेटवर्किंग एंड प्रोवाइड kind of a real world exposure, either through guest lectures or workshops? So just give us a brief over that. Sure, sure. So, Sandesh ji, we can talk throughout the day about the kind of exposure that we are giving because हमारा काम ही मतलब we are experts in that. बट स्टिल जो मैंने आपको बताया उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर दे रहे हैं. तो उसके सिवा मैं बात करता हूं अब. तो यूजुअली कॉर्पोरेट एक्सपोजर इज समथिंग विच एवरीबडी क्लेम्स कि उनका बहुत अच्छा है, राइट? बट कोई एक स्पेसिफिक पैमाना नहीं होता कॉर्पोरेट एक्सपोजर का. what we have tried doing is that we have tried quantifying our corporate exposure. ठीक है, हमने उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करी. We have 30 plus corporate touch points in our entire 2 years of curriculum, which is going to be maximum in North India. Like अगर आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्कूल पे देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IITs and IIMs, बट बियॉन्ड दैट अगर आप किसी भी स्कूल्स में देखोगे, सो वी हैव गॉट मैक्सिमम कॉर्पोरेट टच पॉइंट्स. अभी कॉर्पोरेट टच पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? जो ऐसे पॉइंट्स जहां पे आप कॉर्पोरेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो, हम उसको कॉर्पोरेट टच पॉइंट नेम कर रहे हैं. एंड वी हैव गॉट 30 प्लस कॉर्पोरेट टच पॉइंट्स, राइट? इसके बाद आते हैं हमारे पास वील बी हैविंग मिनिमम 20 प्लस CXOs MDs ऑन कैंपस. दिस इज व्हाट नेक्स्ट 2 years के पूरे टाइमलाइंस की मैं बात कर रहा हूं आपसे. वी विल बी हैविंग मिनिमम 20 प्लस सिंपोजियाज and master classes that will be taking place apart from certifications and ये जो minimum 20 plus CXOs and MDs हमने बात करें उनके सिवा. So these will be different industry experts, trainer who are coming on campus and who are giving this master classes and symposias apart from those 20 plus MDs and CXOs. We have different programs. Like for example, Insight is one of the program which we offer for mid-level corporate people who are coming on campus. There's this Bell series, which is business entrepreneurship and leadership learning series. So this is for MD CXO level people who are coming on campus. We have got this series called Response, which is recruiter specific preparation, optimization and nurturing sessions. So these sessions are going to be taking place for companies which are going to be coming on campus for hirings, उसकी preparation के लिए, राइट? सो इस तरीके से हमने अलग अलग सीरीज बना के रखी है, अलग अलग लेवल ऑफ पीपल हु आर कमिंग ऑन कैंपस. देयर आर वेरियस इवेंट्स दैट आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, जैसे द लीडर समिट हो गया, या फिर जैसे हमारा क्रिएटर्स कॉन्क्लेव हो गया, या फिर ब्रेन हो गया विच इज एन एनालिटिक्स कॉन्क्लेव. सो ये अलग अलग कॉन्क्लेव्स हैं, या HR कॉन्क्लेव हो गया, राइट? सो ये मार्केटिंग कॉन्क्लेव हो गया. सो ये अलग अलग कॉन्क्लेव है जिसमें लोग आएंगे. इसके बाद आपका 1 महीने का लाइफ प्रोजेक्ट होने वाला है जो हर किसी बच्चे को करना है. 2 महीने के समर इंटर्नशिप होने वाला है जो कि हर किसी बच्चे को करना है. 15 डेज का लाइफ प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हर किसी बच्चे को करना है. 6 इंडस्ट्रियल विजिट्स होने वाली हैं, जिसमें से 4 डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल विजिट्स होने वाली हैं, 2 इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल विजिट्स होने वाली हैं. ये हमारा करिकुलम का आप कह सकते हो 50% है. अभी भी हम 50% आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर के बारे में नहीं बता पाए हैं. इसके सिवा एकेडमिक्स जो है साइड बाय साइड चलती रहेगी. एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ संदेश जी, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और जो कि बहुत ही स्पेशल है, जो कि बहुत इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं. हम 4 रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दे रहे हैं बच्चों को. अब ये 4 रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या है कि बच्चों हमारा वी आर बेसिकली ऑन अ ट्राइमेस्टर सिस्टम. 6 ट्राइमेस्टर्स है. सो पहले 4 ट्राइमेस्टर्स में हम दे रहे हैं. पहला ट्राइमेस्टर जो है बच्चे को क्रिएटर्स चैलेंज है, जिसमें बच्चे को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, राइट? सो वहां पे बच्चा जो है अपना एक कैमरा फेयर और अपना स्टेज फेयर दूर करता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे को एक जो है ड्रॉप शिपिंग चैलेंज लेना है. बच्चे को शॉपिफाई में अपना वेबसाइट बना के कोई भी एक लोकल बिजनेस है उससे रेवेन्यू क्रिएट करना है. तो एक बच्चा रियल टाइम बिजनेस ऑपरेट करने के लेवल पे आ गया है बच्चा. थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे को लोकल कंसल्टिंग चैलेंज लेना है. सो ये लोकल कंसल्टिंग चैलेंज में हम किसी भी एक लोकल बिजनेस से बच्चे को कनेक्ट करने वाले हैं और वहां पे बच्चा जो है एटलीस्ट 15 डेज रहने वाला है. सो डे 1 अगर बच्चा उस स्पेसिफिक बिजनेस का रेवेन्यू 100 रुपए होने वाला है, तो डे 15 जब वो बच्चा निकलेगा तो उस बिजनेस का रेवेन्यू एटलीस्ट 101 रुपीज हो. यानी कि देयर शुड बी अ पॉजिटिव चेंज इन रेवेन्यू. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ. सो यहाँ पे बच्चा एक रनिंग बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करने वाला है. एंड लास्ट but not the least is going to be decoding business with founders. So we will be connecting the student
with one of the co-founders of the companies. बच्चा उन्हें शैडो करेगा, ऑब्जर्व करेगा और रिकमेंड करेगा. यानी कि बच्चा जो है वो मेक श्योर करेगा कि पहले तो उसको शैडो करके सीखेगा कि एक स्टार्टअप फाउंडर कैसे ऑपरेट करता है. पॉसिटी ऑफ फंड्स होते हैं, पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उसमें मैक्सिमाइज रिटर्न्स कैसे देता है. एंड एट द सेम टाइम वो ऑब्जर्व करके रिकमेंड भी करने वाला है कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो, बेटर कर सकते हो. सो यू सी, पहले तो बच्चे ने अपना लाइक कैमरा फेयर, स्टेज फेयर दूर करा, रियल टाइम बिजनेस खुद का चलाया, एक रियल रनिंग बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज किया, उसके बाद एक स्टार्टअप फाउंडर को जो है रिकमेंड किया कि वो कैसे बेटर कर सकता है. तो बच्चे का एक ओवरऑल एक्सपोजर आप समझ सकते हो कितना सही होने वाला है, और उसकी नेटवर्किंग कितनी सही होने वाली है. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर. बहुत आपने बहुत पैशनेटली इस वाले पॉइंट को समझाया, और जो प्रैक्टिकल लर्निंग की आपने यहाँ पे बात करी है, दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड आज की डेट में. See, course going towards being theoretical is of not much use. Exactly. Rather than it's like कि you include me in the process and I'll learn it. You'll Exactly. tell me and I'll forget it. तो Exactly. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ. और जिस तरीके से आपने बताया, इट साउंड्स वेरी गुड, मतलब एक्साइटिंग पार्ट एज वेल फ्रॉम आवर टीम साइड, कि अगर उनको मैं इस तरह की चीजें बताता हूँ कि कोई कोई कॉलेज इस तरह की रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को कर रहा है अभी स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव हियर. एक मेरा यहाँ पे और क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आई थिंक कि वो फीस से भी पहले पूछते होंगे यहाँ पे, दैट इज द प्लेसमेंट आउटकम. Exactly. So can you describe the types of companies that recruit from your program, your college, the positions graduate secure, their average salary? थोड़ा सा एक इस तरीके से इसको हम ओपन अप करते हैं कि स्टूडेंट के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में आप बताएं कि उनको आसानी हो समझने में. बिल्कुल, मैं आसान भाषा में बात करता हूँ. सबसे पहले हमारे पीजीएम के बाद बच्चा वो हर 5 काम कर सकता है जो कि एक एमबीए कर सकता है. वो 5 काम क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कि वो बच्चा कॉर्पोरेट में जॉब कर सकता है, वो बच्चा पीएचडी कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, इंडिया या अब्रॉड से. वो बच्चा कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें एमबीए रिक्वायर्ड होता है, वो गवर्नमेंट जॉब बच्चा वो कर सकता है. वो बच्चा स्टार्टअप कर सकता है या फिर किसी भी अपनी फैमिली बिजनेस में जा सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमिग्रेट अब्रॉड कर सकता है. यूजुअली मेजरली अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट जाने के सिवा इमिग्रेट अब्रॉड 4 बेसिक रीजन से करते हैं. एक तो या तो बच्चे को अगर वहां पे जॉब करने जाना है, या तो स्टडी वीजा के लिए, या तो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, या फिर बिजनेस के लिए. तो बच्चा ये सारे काम हमारे पीजीडीएम के बाद, एआईसीटी अप्रूव पीजीडीएम के बाद कर सकता है. अब आते हैं हमारे प्लेसमेंट्स में. सो वी हैव गॉट क्लोज टू 1500 रिक्रूटर्स whom we are, in fact not recruiters, active hiring partners. प्लीज संदेश जी इसका डिफरेंस समझिएगा. अगर कोई आपको बोल रहा है रिक्रूटर, तो वो आपको नहीं पता कि वो किस स्पैनिंग ओवर लास्ट 10 इयर्स में कब आया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में एच की बात कर सको, तो एच जो है उसने लास्ट 5 साल पहले हायरिंग की होगी, और वो आज भी हमारे किसी भी कैंप, यूजुअल जो कैंपसेस होते हैं उसमें एज अ नेम पड़ा होता है. सो वी आर सेइंग एक्टिव हायरिंग पार्टनर्स, मतलब कि हम उनके साथ एग्जैक्टली अभी हायरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट. हर सीजन में एक्टिविटी कर रहे हैं. then only we are saying that we have got 1500 plus active hiring partners from 20 different industries. You name industry and you name company and they're coming to us. You name big fours, EY, KPMG, PwC, Deloitte, they're coming with us. Out of these big fours, though are one of our training partners, KPMG and EY. You talk about strategy companies like Bain and Company, like BDO, all these companies are working with us. You talk about consulting companies like for example Blackstone हो गई, या फिर BlackRock हो गई. So these all companies are working with us. McKinsey हो गई, and maybe McKinsey Rise. So these sort of companies are working with us. You talk about sports companies like Decathlon or Decathlon and Nike. These sort of companies are working with us. You talk about hospitality brands like Oberoi's. I'm just forgetting a couple of names. So they all are working with us. Then you talk about NBFC, BFSI. Most of the big BFSIs are working with us, like Bajaj Capital, Bajaj Finserv,
this Tata Capital. These sort of BFSIs are working with us. Banks are working with us. Like for example, Federal Bank, Standard Chartered, या फिर Bank of America. These HDFC, ICICI, Federal Bank. These sort of banks are working with us. So we have a range of companies. Like e-commerce brands आप ले लीजिए. E-commerce brands में आप ये ले लीजिए, Flipkart ले लीजिए, Amazon ले लीजिए. These sort of brands are working, and for different roles. एंड यू सी जो हायरिंग्स होती हैं स्पेसिफिकली कैंपस प्लेसमेंट्स में, संदेश जी अगर हम बात कर सकें तो वो दो टाइप से मेजरली होती हैं. एक तो रीजनल ऑफिस, यानी कि जैसे नॉर्थ रीजन है तो उसका ऑफिस हायर करने आता है. एक आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हायर करने आता है. सो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे मान लीजिए टाटा कैपिटल है, तो टाटा कैपिटल का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई है, या फिर टाटा पावर का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई है. सो अगर टाटा कैपिटल या टाटा पावर हायर कर रही है मुंबई से, तो वो जो रोल्स होंगे, दोज रोल्स विल बी बिगर रोल्स विद हाई सीटीसीज. So we have all these kind of roles, all these kind of CTCs majorly with us. And at the same time, you talk about roles. Again, role is again something which is very important. This is ज़्यादातर banks sales या business development role के लिए जाते हैं. But most of the banks comes to us, like for example, Federal Bank comes to us for a probationary officer role. Yeah, for that matter, you talk about ICICI, HDFC, they come for us credit analyst kind of roles, right? KPMG comes to us for due diligence or market intelligence kind of roles, right? Deloitte comes for the taxation role, and for that matter, there are different kind of role. Like for example, recently this company called CP Plus. अगर आपके audience को मैं आसानी से याद दिला सकूं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है. सो वो वाला जो कैमरा वाला जो है, सीसीटीवी कैमरे वाला company. So they hired for some AI product manager kind of roles. There are roles like, founder's office role, or probably these chief of staff kind of roles. So these kind of roles are actually those ones जो कि आपको हाई पेइंग रोल्स होते हैं, ज्यादा सैलरीज में मिलते हैं. बिजनेस एनालिस्ट की बात आजकल संदेश जी लोग बहुत करते हैं, राइट? बट बिजनेस एनालिस्ट में वो रोल्स कौन से होते हैं जो कि आपको प्रॉपर हाई सैलरीज दें? सो अगेन वो टाइप के हमारे पास रोल्स हैं, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर काइंड ऑफ रोल, टेक्नो कमर्शियल रोल्स ऑल्सो आर देयर. सो ये सारे सारे रोल्स हैं. अब क्विकली मैं आपको बता सकूं कि हमारा जो हाईएस्ट सीटीसी इंटरनेशनल है वो हमारा करीबन 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, विद दिस कंपनी कॉल्ड क्यूनॉक्स, विच हैपन टू बी एक टेक्नो मैनेजमेंट रोल, जिसमें कि बच्चे का लंदन बेस्ड प्लेसमेंट हुआ है. इसके बाद हमारे पास ये कंपनी है डोमेस्टिक में 34 LPA की, सियाना कंसल्टिंग करके, विच इज मल्टीनेशनल बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव. सो उसमें हमारा वो हुआ है, एक बच्चे का डोमेस्टिक प्लेसमेंट हाईएस्ट हुआ है. फिर वी हैव गॉट कंपनीज लाइक Amazon जो कि 20 लाख के पैकेज में आते हैं, एंड वी हैव गॉट दिस फेडरल बैंक जो कि 12 लाख के पैकेज में आते हैं. एवरेज सीटीसी इज अराउंड 9.02 lakhs. अगर हम एवरेज सीटीसी टॉप 10% बच्चे की बात करें तो इट इज अराउंड 16 lakhs. Average CTC top 20% is around 13 lakhs, and top 50% candidates की अगर हम average CTC निकाले तो वो करीबन 11 लाख के आसपास आती है. So this is about the entire placements जो हम बात कर सकते हैं. अगर इसके सिवा आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं आंसर कर पाया हूँ आपकी, प्लीज मेरे से पूछिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. इसी में मिस हमसे एक ऊपर जो पॉइंट था वो ये था कि वी हैव द पीजीडीएम कोर्स हियर. सो व्हाट इज द टोटल फीस फॉर द पीजीडीएम प्रोग्राम हियर? बिकॉज आपने बताया कि प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9.02 और टॉप 50 की अलग है. इज दिस लाइक अ मीन? मैं निकालूं एवरेज प्लेसमेंट का तो वो है. सो यहाँ पे फीस हमारे कोर्स की क्या है कि सो दैट वी कैन थिंक ऑफ द ROI. सो संदेश जी, जो फीस है हमारे कोर्स की वो है 7,75,000, जिसमें कि आपकी जो सारी मेजर चीजें उसमें इंक्लूडेड है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्यूशन फीस 2 साल की पूरी इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडेड है. इसी में हमारा 4 दिन का जो दुबई का स्टडी लाइक इंटरनेशनल इमर्जन है वो इसमें इंक्लूडेड है. सोशल एक्सकर्जन हमारा इंक्लूडेड है. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन लर्निंग लिमिटेड का इंक्लूडेड है. एक लैपटॉप है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होगा ओपन लर्निंग लिमिटेड के सॉफ्टवेयर के साथ, वो इंक्लूडेड है. 8 सर्टिफिकेशंस इसमें इंक्लूडेड है, एंड एट द सेम टाइम हम मिनिमम 6 LP का जॉब एश्योरेंस भी दे रहे हैं. सो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. एक चीज जो इंक्लूड नहीं है इन सब में वो है हमारा हॉस्टल, जो कि ट्रिपल शेयरिंग के लिए 1.8 लाख पर एनम है और डबल शेयरिंग के लिए 2.4 लाख पर एनम है. इसके सिवा सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है. बच्चे को एक भी रुपए नहीं देना. अगर बच्चे को जो हमारा दुबई का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इमर्जन है, सो उसमें भी लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वीजा
सिर्फ पासपोर्ट उनको हमें देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वीजा टू एयरपोर्ट में रिटर्न करने तक का जितने भी एक्सपेंसेस हैं विल बी बोर्न बाय अस। उसमें बच्चे को कुछ भी नहीं देना वहां पे। इट इज अबाउट अ फीस स्ट्रक्चर। कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है एग्जैक्टली। ओके। सो ठीक है, हमें एक फ्रीज के ब्रेकअप का भी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, और इट्स अ डिसेंट फीस टू से, प्लस आपने बताया था कि इसमें स्कॉलरशिप्स भी है ऑन मेरिट बेसिस। एग्जैक्टली। यहाँ पे एक और चीज मैं चाहूंगा जो आप स्टूडेंट पार्ट के पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी समझनी चाहिए, कि आपने एज अ कॉलेज अपने अपना पार्ट बताया कि दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच आर योर एक्टिव हायरिंग पार्टनर्स, और आपने अपने करिकुलम का बताया, आपने अपने स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट्स, अपने स्ट्रॉन्ग फैकल्टी के बारे में बताया, बट इन ऑर्डर टू गेट 100% प्लेसमेंट देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टूडेंट्स पार्ट एज वेल, एग्जैक्टली। जो बहुत से स्टूडेंट कहीं कहीं जगह मिस कर देते हैं। जो सोचते हैं कि इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, नाउ 100% प्लेसमेंट इज गारंटीड, आई एम गोइंग टू गेट दिस मच पैकेज। तो स्टूडेंट पार्ट पे क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, और क्या चीजें हैं जो उनको कभी मिस नहीं करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि उस पे ज्यादा लोग बात नहीं करते, ज्यादा कॉलेजेस बात नहीं करते। दे आर जस्ट लाइक कि अपनी फैसिलिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, बट आप काफी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप प्लीज एक बार स्टूडेंट को भी इस पे गाइड कीजिए। एग्जैक्टली। संदेश जी, अभी तक जो हमने बात करी उसमें हम रीजंस दे रहे थे एसएसआईएम यानी कि श्री सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन करने का। अब मैं कुछ रीजंस देता हूं श्री सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को अवॉइड करने का। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग सी लाइफ कॉलेज लाइफ जीना चाहता है, वी आर नॉट द राइट इंस्टीट्यूशन फॉर देम, बिकॉज हमारे जो करिकुलम है हमारा, वो बहुत ही रेगुलस करिकुलम होने वाला है। आपकी 3 लाइन्स आर साइमल्टेनियसली वर्किंग। एक तो आपकी एकेडमिक्स की लाइन है, दूसरी कॉर्पोरेट एक्सपोजर की लाइन है, तीसरी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की। सो बच्चा इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड, सुपर ऑक्यूपाइड। अगर आप आईएम्स और आईआईटीज की आई एम श्योर आप बहुत सारे बच्चों से मिलते रहते होंगे, और वो भी आपको रिस्पॉन्स देते रहते होंगे कि रात को शाम को 7 बजे जो है फैकल्टी ने बोला ये असाइनमेंट बनाना है, और रात के 12 बजे असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कट थ्रू डेडलाइंस हैं उनके पास। सिमिलरली हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में हमारे पास बहुत ज्यादा आई मीन ऐसा एक्सपोजर है कि बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता है अगर वो मेहनत नहीं करेगा। और इसका एक सबसे बेस अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे सकूं, जब हम अपना एडमिशन ऑफर देते हैं, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, वी आर नॉट गिविंग एडमिशन लेटर, वी आर गिविंग एडमिशन ऑफर। ठीक है, हमारा एडमिशन टेस्ट नहीं होता, हम एडमिशन कम करियर इवेल्युएशन टेस्ट करते हैं। सो हम पूरी तरीके से आई मीन कॉर्पोरेट स्पेसिफिक चीजें करते हैं, वी आर वेरी फास्ट। यूजुअली आप देखेंगे तो एकेडमिक्स थोड़ा स्लो होता है, बट वी सिंस वी कम फ्रॉम अ टिपिकल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, और हम इसीलिए बोलते भी है दैट दिस एंटायर PGDM is being driven by corporate, right? So we are very fast, we are very we are on a very cutthroat competition basis हम काम करते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है हमारे साथ जो है सिनर्जी बैठा सके। दैट इज द रीजन वाई वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। स्मार्ट टेक हो गया, स्किल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी हो गई। बच्चे को हर बार पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली पढ़ाने क्या जा रहे हैं, तो बच्चे को पहले से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि बच्चे को जो है मिनिमम 6 LPA का जॉब अश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मिनिमम 85% अटेंडेंस रखे, मिनिमम 8.5 CGPA लेके आए, और सारे के सारे 8 सर्टिफिकेशंस क्वालिफाई करे। वी वांट कैंडिडेट टू बी ऑन हिज और हर टोज फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। अगर उसको अपने आने वाले 20 से 25 साल अच्छे बिताने हैं, तो ये 24 महीने बच्चे को बहुत मेहनत करनी है। अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अभी तक एक बार भी कल्चरल फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात नहीं करी, उसका रीजन है दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल करिकुलम, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बहुत मजा आने वाला है बच्चे को, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज बच्चा करने वाला है जो कि बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, और बच्चा बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व होगा, इनग्रेव्ड होगा, उस इनग्रॉस्ड होगा उस स्पेसिफिक चीज के अंदर। बट एट द सेम टाइम बच्चे को अपना तन मन धन जो बोलते हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे को पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा। आसान नहीं है। अगर बच्चा अपने सर पे कफन बांध के आना चाहता है कि मेहनत करनी है मुझे, तो वो आ सकता है। दैट पर्सन इज मोस्ट वेलकम टू अस। दैट वाज सो सो ऑनेस्ट, सो ब्रूटली ऑनेस्ट, और आई थिंक ये बहुत अच्छा
क्लैरिटी इससे मिलेगी स्टूडेंट्स को कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉलेज। एग्जैक्टली। ठीक है, कि किस तरीके की लाइफ वो आगे देख रहे हैं और किस तरीके का अभी कॉलेज का जो माहौल रहने वाला है पढ़ाई के हिसाब से, एडवांस जिस तरह की चीजें रहने वाली हैं। तो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफी क्लैरिटी होगी, काफी स्टूडेंट्स को जो अपने करियर को लेके थोड़े सीरियस हैं, और उस तरीके के स्टूडेंट्स थोड़ा सा और समझ पाएंगे कि बेटर एडमिशंस किस तरीके से यहाँ पे पिक किया जा सकता है। ओके। संदेश जी, कॉम्पिटिटिव है बाहर दुनिया, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है बाहर दुनिया कि अगर हम बच्चे को कुछ फैंसी और हाँ। ग्लिम्जी लाइफ दिखाएंगे तो हम बच्चे को वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन। जस्ट टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कि हर साल हायर एजुकेशन में 4 करोड़ के ऊपर बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं। 1 करोड़ के ऊपर बच्चे पास होते हैं, जिसमें से 15 लाख इंजीनियर्स पास होते हैं और 4.5 लाख मैनेजमेंट कैंडिडेट्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स पास होते हैं, जिसमें लेस देन 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेस हो पाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग में करीबन 50% के आसपास बच्चे प्लेस हो जाते हैं। आउट ऑफ दीज 25% कैंडिडेट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट जो प्लेस हो रहे हैं वो ज्यादातर कैंडिडेट सेल्स में प्लेस हो रहे हैं। तो अगर इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आपको एक अच्छा करियर सिक्योर करना है, सी, एक फर्स्ट जॉब दिलाने को तो कोई भी दिला सकता है, बट अगर आपको एक अच्छा करियर सिक्योर करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे आराम से कर सके तो वो गलत एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर कोई एक्सपेक्टेशन दे रहा है ये तो वो गलत दे रहा है। हम नहीं दे सकते वो एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छा एडवाइस था फॉर स्टूडेंट्स, और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम भी हैं और हम देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल ट्रुथ है। ठीक है, कोई भी आपको अगर आके इस तरीके की बातें बोल रहा है कि नहीं नहीं इट्स ओके, बस एडमिशन लेना है, उसके बाद जर्नी स्मूथ है और अच्छा हो जाएगा, सो ऐसा नहीं है। सब कुछ स्टूडेंट ने करना है। इट इज लाइक कि आपको राइट गाइडेंस दे सकता है कोई, आपको राइट एनवायरनमेंट दे सकता है, राइट करिकुलम जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और मेंटरशिप जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड अगर आपको कोई दे सकता है, पर स्टूडेंट की असली जर्नी स्टार्ट उसके बाद ही होती है, एग्जैक्टली। और देर इज नो अदर ऑल्टरनेट टू हार्ड वर्क। राइट। सो ट्रू हियर सुचितन दी। सो यही 6 सवाल थे हमारे जो हम हर कॉलेजेस से पूछ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को पूछने चाहिए अगर वो किसी भी कॉलेज में जाते हैं फॉर एडमिशन, और ये पेरेंट्स को पूछने चाहिए उन कॉलेजेस से जिसमें उनके जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड शॉर्ट इंसाइटफुल सेशन, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस जो हमारे पास स्टूडेंट्स के आते रहेंगे, और इस तरह की और कोई काउंसलिंग, कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड बेस्ड की, किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, और कोई कोई केस इस तरीके का है कि स्टूडेंट को कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए, क्योंकि सुखमनी जो एज अ ब्रांड और एज अ बॉडी बहुत पुरानी और बहुत लार्ज बॉडी है। सो अगर कुछ उस तरीके की कोई आपसे हेल्प चाहिए होगी हमें, या कोई इंसाइट चाहिए होगी, तो विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू अगेन। फॉर श्योर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें। लेट्स फोकस ऑन दीज 6 पॉइंट्स जो हमने बात करी, टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया a much better education system and a future ready education system. वेरी ट्रू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sandesh ji. You're doing wonderful job, and I would So say thank you it's important. Chetan ji. हाँ। Usually लोग ends पे फोकस करते हैं, जर्नी में फोकस नहीं करते। बट जो आपने इस आज 6 सवालों की बात करी है, ये 6 सवाल एक्चुअली वो चीजें हैं जो जर्नी पे फोकस कर रहा है। हम यूजुअली फीस में फोकस करते हैं और फिर प्लेसमेंट्स में फोकस करते हैं। बट एग्जैक्टली जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमें सभी को समझ में आती है कि कामयाबी, आपको आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना चाहिए, काबिलियत के पीछे भागना चाहिए। काबिलियत आ जाएगी तो कामयाबी अपने आप पीछे भागेगी। तो आई सपोज उसी के लिए आप बात कर रहे हैं कि काबिलियत कैसी लाई जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट यू आर डूइंग इन लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज वेरी सब्सटैंशियल, वो और कोई नहीं कर सकता है। सो kudos to you, and more power to you, so that you can do these kind of work, all along. Thank you very much.
थैंक यू श्री चेतन दी फॉर एनलाइटिंग अस और स्टूडेंट्स को एक बेटर करियर डायरेक्शन के लिए। आपकी जो ओवरऑल डिस्कशन जो आपसे करके समझ में आया, वो अपार्ट फ्रॉम दी SSIM और भी उसमें बहुत इंसाइटफुल चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को जनरल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। Thank you very much. सो थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you, bye bye. सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको डिसीजन मेकिंग करने में काफी हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड यू वांट एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप असिस्टेंस, डिस्काउंट्स ऑन एप्लीकेशन फॉर्म्स, PI एंड ग्रुप डिस्कशन प्रिपरेशन टू क्लियर योर कॉलेज इंटरव्यू, free personalized academic counseling, real placement statistics of this college, and unbiased comparison of this college with similar league colleges, then don't wait, call us ASAP or visit our website boostmytalent.com and let Boost My Talent help you to secure your future today.